Hey, hello everyone. Welcome back to my channel Hisam Academy. It's me Sumul Rizvi, an English language fluency expert once again. So this is the video and I'm recording this video in the continuation of my previous video. So those who continuously follow me and they are my subscribers, so they are quite aware that last time I made a video on prepositions in which I tried my level best to give you a better understanding of the prepositions that we use, and then I discussed some of the mistakes and errors that we usually make whenever we make our sentences. And then after that I provided you the corrected versions as well. But at that time I left two prepositions, and that is to and by, because to and by prepositions are something that it has like many uses. So that's why at that time when I was recording my previous video, I thought that I will be making another video in the future in which I will separately discussing these two prepositions. So this is the video and here I am, and let's get into the topic without any further ado, and let's find out that where and why and in what situation we can use these two prepositions, to and by. So let's get into it. So the first one we are going to discuss is the preposition to. To के बहुत सारे uses होते हैं. So the first one we are going to discuss is the direction. जब भी हम किसी चीज़ की मूवमेंट की बात करते हैं और उस मूवमेंट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम टू की preposition का इस्तेमाल करते हैं. Like for example, if I say that my daughter is going to school, तो क्योंकि वो अपनी मूवमेंट बता रही है, यानी कि मैं बता रही हूँ कि वो स्कूल जा रही है, सो इस मूवमेंट को मैं या इस डायरेक्शन को जब मैं डिस्क्राइब करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, तो मैं टू की preposition का इस्तेमाल करूँगी. Always look to the right and left while crossing the street. Look to the right and left means that you are explaining the directions once again. So there, that's why I have used to preposition. So the next use we have is receiving, यानी कि जब हम किसी चीज़ को किसी को दें और सामने वाला शख्स उसे ले, यानी कि रिसीव करे, तो यहाँ पर भी हम to की preposition का इस्तेमाल करते हैं. Like for example, I can say that I didn't invite her on my birthday party because she was always mean to me. यानी कि क्योंकि वो मुझसे हमेशा mean हुआ करती थी, लिहाजा मैंने उसे अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट नहीं किया. तो जब वो mean हुआ करती थी तो उसके जो rudeness थी, I was the receiver. मैं उस चीज़ को receive कर रही थी, उसकी rudeness को मैंने receive किया था. So because I was the receiver of that thing, so that's why I can use to preposition over here. सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आई गिव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू हर ऑन हर बर्थडे, यानी कि मैंने उसको उसकी बर्थडे पर एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया. सो बिकॉज शी वॉज द रिसीवर ऑफ दैट गिफ्ट, सो दैट्स वाई व्हेन आई विल बी मेकिंग माई सेंटेंस, तो मैं यहाँ पर टू का इस्तेमाल करूंगी. द नेक्स्ट यूजेज इज कनेक्शंस. जब भी हम कनेक्शंस बनाने के बारे में बात करते हैं तब भी हम टू की preposition को इस्तेमाल करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई एम मैरिड टू माई कज़न, यानी कि मैं अपने कज़न से ही मैरिड हूँ, यानी कि वही मेरे हस्बैंड है, तो मैं यहाँ पे टू की preposition का यूज़ करूँगी बिकॉज आई एम मेकिंग अ कनेक्शन विद अनदर पर्सन. सिमिलरली अगर मैं कहूँ अपनी किसी फ्रेंड के बारे में कि या शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड आई फील कनेक्टेड टू हर, यानी कि मैं उसके साथ कनेक्टेड फील करती हूँ. सो बिकॉज ओवर हियर एज वेल आई एम मेकिंग अ कनेक्शन, सो दैट्स वाई आई कैन यूज एंड आई विल use the preposition to. सिमिलरली अगर मैं किन्हीं भी दो चीज़ों के बारे में फिजिकल कनेक्शन या अटैचमेंट की बात करूं, फिजिकल अटैचमेंट की, जैसे अगर मैं कहूं कि एक्सीडेंटली द पीस ऑफ पेपर वाज ग्लूड टू माई हैंड, यानी कि वो एक्सीडेंटली मेरे हाथ से चिपक गया था, तो उसका चिपकना मेरे हाथ से इज बेसिकली अ फिजिकल अटैचमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दैट्स व्हाई इन दिस रिगार्ड टू व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फिजिकल अटैचमेंट्स, सो वी कैन यूज द preposition एंड वी विल यूज द preposition to. बिल्कुल इसी तरह जब भी हम कंपैरिजंस की बात करते हैं किन्हीं भी दो चीज़ों के बारे में या स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो भी हम टू की preposition का यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट हाई स्कूल इज ईजी एज कंपेयर टू द कॉलेज, यानी कि अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो उसके मुकाबले में हाई स्कूल ज़्यादा आसान होता है. सो बिकॉज इन दिस सेंटेंस आई एम कंपेयरिंग द टू थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई कैन यूज द preposition to. द नेक्स्ट यूज इज रीजन्स, यानी कि जब भी आपको किसी चीज़ का कोई रीज़न देना होता है तो उस वक्त भी आप टू की preposition का इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट ही शुडंट हैव जॉइंड द जिम जस्ट टू इम्प्रेस पीपल. नाउ उसका जिम ज्वाइन करने के पीछे जो रीज़न था वो क्या था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस पीपल. सो दैट्स वाई वी कैन यूज टू preposition ओवर हियर.
Similarly, for example, if I say that I studied so hard, मैंने बहुत 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 मेहनत की just to get good results या good grades. So just to get good grades mean that was basically the reason कि जिसकी वजह से जो मैंने इतनी मेहनत की तो क्यों की, because the reason was कि मैं good grades लेना चाहती थी. So whenever you want to express the reason, whenever you want to explain the reason of something, of anything, so there you can use a preposition to. The another use of the preposition to is very unique and usually British English में हम देखते हैं कि to को इस context में लिया जा रहा है. वो context क्या है कि जब भी हम एक certain time से पहले की बात करते हैं, before a certain time, so in this regard, in this context, we can use the preposition to. Like for example, अगर मैं कहूँ कि it is 4:45, 4:45, it means कि अभी क्या time हो रहा है, what time is it? टाइम इस वक्त हो रहा है 3:45, तो 4 में क्वार्टर है तो इट इज 4:45. सो 4 इज बेसिकली अ टाइम और उस टाइम से पहले की बात की जा रही है तो मैं यहाँ पे 2 को यूज कर सकती हूँ. या बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इट्स 10 minutes टू क्लोजिंग, यानी कि बंद होने में या खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं. So once again, because I am talking about a time before a certain time, so that's why I can use a preposition to over here. अच्छा, अब टू की तरह बाय की भी बहुत ज़्यादा यूजेस है. तो सबसे पहले बाय का सबसे पहला यूज देख लेते हैं. यूजुअली हम बाय को किसी भी प्लेस या लोकेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि डेविड लिव्स बाय अ ट्रेन स्टेशन, यानी कि वो साथ रहता है बराबर. अब यहाँ पर बाय किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है? बिसाइड्स के कॉन्सेप्ट में, या नेक्स्ट टू का एक रिलेशन है, या क्लोज के भी कॉन्टेक्स्ट में आप उसे यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके के सिचुएशंस में या इस तरीके के जब भी आपको बात करनी हो, बिसाइड्स या क्लोज टू जब आपको यूज करना हो, तो वहां पे आप बहुत आसानी बाय को इस्तेमाल कर सकते हैं. अब बाय का एक बहुत ही कॉमन यूज है, यानी कि हम उसे तब भी यूज कर सकते हैं जब हम अपने मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें. जैसे फॉर एग्जांपल बाय बस, बाय ट्रेन, यानी कि अगर मैं किसी से पूछूं कि यार आप क्लास लेने के लिए आते हैं तो आप कैसे आते हैं, सो ही विल टेल मी दैट मैम आई कम टू टेक क्लास और टू अटेंड क्लास बाय बस, यानी कि मैं बस से सफर करके आता हूं. तो जब भी कोई अपना मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करता है या बताना चाहता है तो तब भी वो उस व्हीकल से पहले बाय का इस्तेमाल बासानी कर सकता है. मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आप बाय को मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बाय टेलीफोन या बाय पोस्ट. जैसे अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने उससे टेलीफोन पे बात की थी, सो आई कैन से दैट आई स्पोक टू हर बाय टेलीफोन. मैंने उससे टेलीफोन के ऊपर या टेलीफोन के जरिए से बात की थी. सो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सप्रेस द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, सो देयर एज वेल बिफोर द मीडियम यू कैन यूज द प्रीपोजिशन बाय. बाय प्रपोजिशन को आप मेथड ऑफ पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कैन आई पे बाय चेक, क्या मैं चेक के जरिए से पेमेंट कर सकती हूँ. कैन आई पे बाय माय क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड के जरिए से अपनी पेमेंट कर सकती हूँ. सो whenever you want to explain or whenever you want to use any method of payment, so before that you can use by preposition. But here we do have an exemption and that is cash. जब भी आप कैश की बात करेंगे तो कैश से पहले आप कभी भी बाय की preposition को यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप इन की preposition को यूज करेंगे. Like for example you can say can I pay in cash. अब यहाँ अगर आपने कहा can I pay by cash तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कैश की बात होगी तो उससे पहले इनकी प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा और इसके अलावा बाकी जितने भी मेथड्स ऑफ पेमेंट हैं उससे पहले आप बाय को यूज करेंगे. बाय की प्रपोजिशन को हम जब पैसिव वॉइसेस बनाते हैं एक्टिव से तो वहां पे भी हम इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली पैसिव वॉइसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम सेंटेंस में सबसे पहले ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं. तो जब भी हम अपने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे भी हम बाय की प्रपोजिशन को यूज करते हैं. लाइक हु वाज द डूअर ऑफ दिस एक्शन, तो वहां पर हम बाय की प्रपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है कि लाइक David is cleaning the kitchen, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो आप बनाएंगे that the kitchen is being cleaned by David. तो यहाँ पे because David was a person who was actually cleaning the kitchen and he was the doer of an action, so that's why जब मैं पैसिव बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं पहले by लगाऊंगी और फिर बाद में David का नाम लिख दूंगी. बाय का एक बहुत ही अच्छा यूज और भी है, यानी कि हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले भी यूज करते हैं. अब सवाल ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. तो आपने इंग्लिश में अक्सर ऐसे वर्ड सुने होंगे माई सेल्फ,
हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्व्स, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं तो उससे पहले आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट आई एंजॉय रीडिंग बाय माई सेल्फ। इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कोई भी काम जो किसी ने अकेले किया या आपने अकेले किया, ठीक है। तो जब आप अकेले के कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, और जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं तो उससे पहले आप बाय की प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। सिंपल। सिमिलरली जब भी आप किसी चीज के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है, तो उस वक्त भी आप बाय की प्रेपोजिशन को यूज करते हैं और उसके बाद आप आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यू कैन टर्न दिस रेडियो ऑन बाय प्रेसिंग दिस बटन। अब आपने क्या किया, किसी को समझा रहे हैं आप कि ये रेडियो काम कैसे करता है और कैसे समझा रहे हैं कि ये ऐसे काम करेगा अगर आप ये बटन प्रेस कर देंगे। तो बिकॉज यू आर गिविंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू समवन कि कोई चीज कैसे काम करती है एंड हाउ आर यू एक्चुअली डूइंग दैट, आप कैसे कर रहे हैं, कि यू आर यूजिंग द preposition by and after that you are using ing form of the verb, that by pressing this button you can turn this radio on. So in this context as well you can use by preposition. बाय की प्रेपोजिशन को हम तब भी यूज करते हैं जब हम किसी को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कैद करना चाहते हैं, या जब भी हम टाइम एक्सप्रेशंस के सेंटेंसेस बनाएं और वहां पे बाय को यूज करना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आई वांट दिस असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड बाय टुनाइट, तो बाय टुनाइट का मतलब है कि आपके पास आज की रात के अलावा और टाइम नहीं है। तो मैंने आपको क्या किया, एक टाइम फ्रेम के अंदर बंद कर दिया, बाउंड कर दिया, मैंने आपको कैद कर दिया। अब उसके अलावा अगर आप इस आज रात के बाद मुझे कल असाइनमेंट देंगे या प्रोजेक्ट या फाइल देंगे तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो बाय टुनाइट, बाय इवनिंग, बाय 11 AM या PM का मतलब होता है कि इस चीज के बाद आप वो चीज नहीं कर सकते। तो जब भी आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट या सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पे भी आप बाय की प्रेपोजिशन को बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं। Okay guys, thank you so much and that was it for our today's video. I hope that you found this video helpful और I think काफ़ी सारे लोगों को उनके जवाब मिल गए होंगे जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि preposition की वीडियो के अंदर आपने इन दो prepositions को इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो मैंने इसी वजह से इंक्लूड नहीं किया था deliberately, क्योंकि वो बहुत लेंदी वीडियो थी, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ उसके अंदर ऑलरेडी थी। तो मैं ये चाहती थी कि मैं इन दो प्रेपोजिशंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि इनकी भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूजेजेस हैं। तो इस वजह से ये वीडियो अलग से बनाई गई और आज आपके साथ शेयर की गई। तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you would never miss on any update. Share this video with your friends, with your family and with your mates, with your peeps, ताकि वो भी इंग्लिश को सीखें अच्छे से, खुशी से और उसे बोलें। और please keep learning with Hisam Academy and don't forget to subscribe our YouTube channel to learn more about English language. Thank you so much.